nitty-gritties and discuss different components of research in detail. So the first, which I thought is an important thing, is to question the very term question, because we all ask questions, but we don't. We don't take a pause to think what question itself is. So this is very important, that we should go on understanding the question, because question is the foundation of research. So whenever you start a research, you start from a research from a problem. So you have to identify a problem, and it is a very challenging sort of first step for the beginners who are in the research, how to formulate a problem. So I will not be entering into the technical details of how a problem statement is carved out, but I would like to dive down into the philosophical layers of the very term question, and would like to explore along with you what question really means. So today's topic is questioning the question and understanding the understanding. And obviously, at the end of the session, we'll end up by understanding what actually understanding means. So if you allow me to upload my presentation. So just let me know if my presentation is shared. जी विजिबल है। Yeah, I just simply call in the middle. Okay. Is it visible now? जी विजिबल है सर। So today's discussion is a bit complex. So I would request you all to pay full attention to this discussion, and I would like to end it before time so that we have enough time for question and answer. Although we have started a bit late, but hopefully with your support and cooperation, I will be able to end it in time. So Quran in question. Obviously, starting from our very basic text, which is, the core of our wisdom. So Quran also encourages questions. So in Surah Nahl, we see, so ask the people of knowledge if you do not know. So परवरदिगार इसमें वाज़ेह तौर पे हमें ये कह रहा है कि why don't you go on asking further questions, the things you don't know, why don't you go on asking from अहले ज़िक्र. सो अहले ज़िक्र यानी ऐसे लोग के जो बिलाखिर सवालों के जवाब को जानते हैं, तो यू आर एनकरेज टू गो एंड आस्क फ्रॉम देम. अच्छा, यहाँ फिर एक सवाल है, बल्कि अगर पॉसिबल हो तो आई वुड लाइक टू हैव योर टेक ऑन दिस. सो अगर आप जाके अहले ज़िक्र से पूछ लेंगे और वो दे दे गो ऑन टेलिंग यू द आंसर, तो आपकी अपनी मेंटल ग्रोथ कैसे होगी? सो आप क्या समझते हैं इसको? कुछ राय दें इस पे. जी, द फ्लोर इज ओपन, कोई भी राय दें. सर यही कि हमारे लिए ज्यादा फायदा होगा कि हम अहले जिक्र करने के बजाय खुद अगर स्टडी करें, खुद रिसर्च करें, फिर उसके बाद अहले जिक्र के पास जो जिनके पास नॉलेज है उनके पास जाएं, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल. So don't you think that it's a shortcut? I mean, going for a shortcut when we don't know something, and it is hard for us to struggle and think on the thing to reveal the real truth. So the easy way is to go and ask from the Elizik. जी, isn't it a shortcut? And क्या shortcut हमें खुद डेवलप करने में मदद दे सकता है? मीन्स ना, तो अगर हम अपने हिसाब से
से खुद सर्च करने की कोशिश करेंगे तो वी विल डेफिनेटली फाइंड द आंसर दैट दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज एंड आवर रिसर्च। बट इफ विल आस्क अहले जिक्र, तो हम लाइक जो उन्होंने उनके दिमाग के मुताबिक, उनके रिसर्च, उनके नॉलेज के मुताबिक उन्होंने सर्च किया है, वो जवाब देंगे। तो व्हाई नॉट यूज योर ब्रेन दैट इज गिवन बाय द गॉड। सो अपने अक्ल के मुताबिक उस रिसर्च को, मतलब जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढें। That's it. ओके, सो इफ यू गो एंड आस्क फ्रॉम द अहले जिक्र, तो आप अपनी अक्ल तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। Sorry? इफ यू गो एंड आस्क द आंसर फ्रॉम अहले जिक्र, तो आप अपनी अक्ल तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। No. अगर कोई चीज है और इसके बारे में हम खुद सर्च करेंगे, इंस्टेड क्या हम अहले जिक्र से उसका पूछें, तो अगर हम किसी से पूछेंगे तो वो तो वही नॉलेज बताएंगे ना जो उन्होंने सर्च की हो। लेकिन अगर हम जाके खुद उस चीज के बारे में सर्च करेंगे और खुद इसके बारे में लाइक करेंगे, तो हमें अपने अक्ल और अपनी नॉलेज के हिसाब से उसका जवाब मिलेगा। तो हम लाइक किसी किसी की बताए हुए लाइक लकीर के फकीर होना वो वाला नहीं होगा, हम अपने हिसाब से उस चीज को देखेंगे। That's what I want to say. ठीक है, thank you very much for adding this thing in. So by the end of this presentation, we hopefully we'll be able to reveal the answer for this question as well. वो तकरीबन इसी के करीब होगा, मगर a bit in more detail. So let's see कि हम किस आंसर तक पहुंचते हैं। इसके अलावा सूरह अंबिया में परवरदिगार फरमाते हैं, and we sent not before you except men to whom we revealed. So ask the people of knowledge if you do not know. So यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि जानने वाले, जो जानते हैं, अहले जिक्र हैं, उनसे आप कंसल्ट करें और उनसे आप पूछें। एक सवाल मैंने यहाँ पे रेज कर दिया, लेट्स पार्क द क्वेश्चन एंड मूव फॉरवर्ड। सो द कॉमन डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, सिंपल मीनिंग ऑफ अ क्वेश्चन इज समथिंग वी आस्क इन ऑर्डर टू नो, अंडरस्टैंड और सीक क्लैरिफिकेशन। सो बिल्कुल एक कॉमन जो एक आमियाना तसव्वुर है सवाल का, वो ये है कि ऑब्वियसली वी आस्क अ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू नो, अंडरस्टैंड और सीक क्लैरिफिकेशन। For example, when will the food be ready? So if you don't know the timing of the food being, at what time will it be ready? So what will you do? You ask for it. So the aim is to simply to gain information. So there is a chunk of or piece of information missing in your mind, जो कि आपके दाएं बाएं से ताल्लुक रखती है, and you go on asking for it. For example, what is the temperature today? Will it rain tonight or not? So ये सारे वो सवाल हैं कि जो इंफॉर्मेशन पीसेस हैं जो मिसिंग है, और आप उनको सवाल करते हैं, और द एम इज टू गेन द इंफॉर्मेशन। इन एवरी लाइफ अ क्वेश्चन मींस आई एम आस्किंग टू फिल द गैप इन माय नॉलेज। सो मेरी इंफॉर्मेशन के अंदर, मेरी नॉलेज के अंदर जो भी गैप है, हम उसे पूछते हैं ताकि हम उसे फिल कर सकें, नॉट एनीथिंग डीपर। सो entering in before entering into this discussion, I would like to share some of the types of questions. तो वैसे कोई ऐसे फिक्स टाइप्स नहीं है कि ये जो 5 मैं एक्सप्लेन करूंगा यही है, मगर ये कि ये 5 मेन थी, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारा क्लियर हो जाए, हम किस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं, फिर हम उसकी असल कोर में एंटर हों। सो ऑब्वियसली फैक्चुअल क्वेश्चंस, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? सो यू वांट टू नो द फैक्ट, जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं पीछे। वो आमियाना से क्वेश्चंस होते हैं दाएं बाएं की चीज़ों के बारे में, या थोड़ा सा साइंटिफिक नौयत के सवाल होते हैं। वी वांट टू नो द फैक्ट्स, सो वी आस्क क्वेश्चन टू नो द फैक्ट्स, टू नो द करेक्ट आंसर टू समथिंग। Investigative questions, obviously, to dig deeper into a problem or reality. What are the causes of poverty and how can they be resolved? So जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च में यही क्वेश्चंस होते हैं, रिसर्च के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं, और उसके बाद हम रिसर्च के क्वेश्चंस बनाते हैं। तो वो क्वेश्चंस या टाइप ऑफ रिसर्च को अगर आप देखें तो ब्रॉडरली दे टेल यू विद दीज 5 सॉर्ट ऑफ क्यूरीज। तो हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड हाउ कैन दे बी रिजॉल्व्ड। उसके अलावा एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस होते हैं, टू एक्सप्लोर मैटर्स ऑफ द यूनिवर्स, ये इससे भी ज्यादा डीपर है, टू एक्सप्लोर मैटर्स ऑफ द यूनिवर्स, लाइफ एंड डेथ। हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, हम किस जगह हैं, सो कोई हमारा खालिक है नहीं है। सो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आवर एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस। फोर्थ टाइप इज द क्रिटिकल क्वेश्चंस। क्रिटिकल क्वेश्चंस में होता ये है कि द पर्पस is to challenge the prevailing ideas. बहुत important है। When you are living in a world of, in a fabricated sort of a world where fabricated reality lies everywhere, जहाँ पे हकीकत को छुपाया जाता है, और कुछ ग्रोह होते हैं जो आपकी आज़ादी, आपके फ्रीडम, आपके राइट्स को सल्व करते हैं, और उसके बाद यह है कि दे वांट टू कीप यू
इन डार्कनेस सो दैट यू डोंट गो ऑन नोइंग के आपका कौन सा हक छीना गया है। तो ऑब्वियसली वहां पर critical questioning is the right tool to challenge prevailing ideas, social norms or accept truths. सो वी हम हमारे जहन में एक छन्नी है जो कि छानती है चीजों को, और उस छन्नी के जरिए से हम गलत और सही का अंदाजा लगाते हैं। तो गलत और सही नहीं, यहाँ पे हम क्रिटिकल यानी सवाल उठाते हैं, क्या वाकई जो ये बात कही जा रही है ऐसे ही है या इसके पीछे कोई और सवाल तो नहीं है। सो इट इज वेरी गुड टू हैव क्रिटिकल सॉर्ट ऑफ रीजनिंग। और आजकल एजुकेशन के अंदर बिलखुसूस क्रिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल एजुकेशन के अंदर आपकी जो क्रिटिकल पेडागोजी है उसके अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। सो मूविंग ऑन टू एथिकल क्वेश्चंस, एथिकल क्वेश्चंस में वी ट्राई टू फाइंड राइट एंड रॉन्ग, या कौन सी चीज की वैल्यू ज्यादा है, कौन सी चीज की वैल्यू कम है। हम ये बात करते हैं कि हमारे दाएं बाएं वैल्यूज हैं, द डिफरेंस लाइज इन द वैल्यूज। ऑब्वियसली हलाल और हराम तो बहुत मतलब आप समझ लीजिए बहुत क्लैरिटी होती है, मगर देयर इज ए वाइडर ग्रे एरिया इन बिटवीन दीज थिंग्स, जहां पे वी हैव टू कम अप विद इन आंसर कि कौन सी चीज से बेहतर है, विच वन इज वैल्यूड, विच शुड बी वैल्यूड मोर देन द अदर वन। यहाँ पर बहुत सारे ग्रे एरियाज और यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत से काम लेना पड़ता है। और ये जो रिसर्च है सोशल साइंसेस की रिसर्च, यहाँ पे ऑब्वियसली एथिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, एथिकल डायलेमास होते हैं, जहां पर हमें चीजों को देखना होता है। ऑब्वियसली देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट सॉर्ट ऑफ आंसर्स टू दिस थिंग, दे आर वेरी सब्जेक्टिव एंड कॉन्टेक्चुअल। ठीक है जी, तो लेट्स मूव ऑन। ये आपने टाइप्स भी देख ली। नाउ लेट्स एंटर इनटू द फिलोसॉफिकल डेफिनेशन ऑफ द क्वेश्चन। यहां तक कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो फिलोसॉफिकल डेफिनेशन की तरफ जब हम आते हैं तो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चंस ये हैं कि इन फिलोसफी ए क्वेश्चन इज नॉट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। यहाँ से पहले तक आम जिंदगी के अंदर बाकी चीजों में वी वर ओनली कंसर्न टू नो सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर क्वेश्चंस, जो आमियाना एक वो था। बट व्हेन वी एंटर इनटू द फिलोसफी, जैसे मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि हर बात की तह में एक बात होती है और वही तो असल बात होती है। So philosophy is actually concerned about exploring the deeper layers of reality and to come up with the and try to come up with the ultimate reality. वो बहुत मुश्किल है अल्टीमेट रियलिटी को पा लेना, मगर बिल आखिर ये है कि ट्राइज टू कैप्चर द अल्टीमेट रियलिटी डिगिंग डाउन डीप इनटू लेयर्स। और उसमें यह है कि बट अ टूल फॉर थिंकिंग एनालिसिस एंड अनकवरिंग लेयर्स ऑफ रियलिटी। इट इज अ टूल फॉर थिंकिंग एनालिसिस एंड अनकवरिंग लेयर्स ऑफ रियलिटी। यहां से बात यह है कि अगर तो हम सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल मीनिंग ऑफ क्वेश्चन पे रहेंगे तो बहुत अच्छा है, फिर तो हम जिंदगी जी रहे हैं और हमें ना खुद तंग होने की जरूरत है ना किसी और को तंग करने की जरूरत है। बट इफ यू वांट टू गो डीपर इनटू द रियलिटी ऑब्वियसली देन फिर इस अक्ल को हमने टूल के तौर पे यूज करना है फॉर थिंकिंग एनालिसिस एंड अनकवरिंग लेयर्स ऑफ रियलिटी, जो कि रिसर्च का सिर्फ अपना है। सो अ क्वेश्चन इज अ टूल सर्च फॉर ट्रूथ। Asking a question is an admission that I do not know everything and I must search to reach the truth. So आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन है, जो हमारे माशरे में रहता है, फिलोसॉफिकल डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन जो है वो उससे थोड़ी सी डीपर हो गई है, मगर इससे आगे भी एक डीपर लेयर है जिसको हम पेनिट्रेट करने की भी कोशिश करेंगे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्वेश्चन हाफ नॉलेज, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन इज हाफ नॉलेज। फिर फरमाते हैं कि बदतरीन इल्म वो है जो जहन में सवाल पैदा ना करे। तो बहुत सारी ऐसे हमें फरामीन मिलते हैं जिसके अंदर इशारे इसी तरफ हैं कि नॉलेज जो है वो इट कैन ओनली बी ओपन बाय क्वेश्चंस। सो इफ योर माइंड हैज नॉट डज नॉट हैज द एबिलिटी टू रेज द क्वेश्चंस, तो फिर ये खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए है और हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। आई बिन इन इंटरेक्शन विद डिफरेंट स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली OA लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है। So what I have observed is that unfortunately majority of our students after spending years in our conventional schooling system वो सवाल करने की हिस्स छोड़ जाते हैं। इस पे पिछली दफा भी बात हुई थी। तो यहाँ पे फिर मैं वही बात करूंगा कि आप देख लें खुद कुरान किस तरफ फोकस कर रहा है कि तुम अपने सवाल जो है वो अहले ज़िक्र से पूछो। मैं ये सवाल करता हूँ कि जिसके जहन में सवाल ही नहीं आ रहा वो किससे जाके पूछेगा, वो क्यों पूछेगा, और उसे रियलिटी से क्या वास्ता होगा, क्योंकि उसका जहन ने सवाल करना छोड़ दिया। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। मेरे पास मैंने आपको बताया था कि आई एम वर्किंग ऑन डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ एजुकेशन। सो व्हेनेवर पीपल कम एंड जॉइन मी
एंड दे हैव कम फ्रॉम द कन्वेंशनल स्कूलिंग, तो मुझे डी स्कूल करना पड़ता है, मुझे साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं उनको डी स्कूल करते हुए, ताकि उनका माइंड जो है वो सवाल करना शुरू करे, वरना वो सवाल ही नहीं करते। जितने फ्रेश आते हैं उनको आदत ही नहीं है सवाल करने की। यानी बहुत मुश्किल है कि वो ये भी सवाल करते हैं कि ये जो किताब में लिखा हुआ है ये क्या कह रहा है, हमें समझ में नहीं आई। 6 बरस के उसके ऊपर वो डीपर क्वेश्चंस को उठाए। तो बात ये है कि जब हमें पता है कि क्वेश्चन इज हाफ ऑफ नॉलेज, सो हम क्वेश्चन नहीं उठा रहे, तो इसका मतलब हाफ नॉलेज तो हमने छोड़ दिया। और इमाम अली अलैहिस्सलाम, मैंने खुद भी आपसे अभी उनका जिक्र किया कि बदतरीन इल्म वो है जहन में सवाल पैदा ना करे। तो इट इज ऑल्सो टेस्ट फॉर यू गाइज कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर कितने सवाल उठते हैं। और पिछले में बहुत ज्यादा थे, इसीलिए मेरी कोशिश है कि आज हम थोड़ा जल्दी गुजरें और हम सवालों के लिए एक अच्छा टाइम निकाल सकें। सो वेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन, जस्ट जॉट इट डाउन और पार्क इट समवेयर, कहीं लिख लें ताकि भूले नहीं। यू कैन ऑल्सो गो ऑन एट ड्रॉपिंग इट इनटू द चैट, सो दैट आपके जहन से निकले नहीं और आखिर में हम उन चीजों को एक्सप्लोर कर सकें। तो अब यहां से थोड़ा सा डीपर होना शुरू हुआ है। घबराना आप नहीं है, मेरे साथ रहना है। मुझे इंशाल्लाह बहुत थोड़े टाइम में ये सारी चीजें कवर करके निकलनी है यहाँ से। सो आई वॉज ऑल्सो अ बिट अफ्रेड ऑफ टुडेज सेशन, क्योंकि इसमें कुछ फिलोसफी एंटर होनी थी। मगर यह है कि जो पिछली दफा सेशन था आपके साथ, उसने मुझे हौसला दिया कि आई कैन गो ऑन डिस्कसिंग दीस थिंग्स एज वेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सवाल जो जहन में उठता है और फिर हम उसके बाद कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ये असल में चीज क्या है। देखिए, कॉमन थिंग इज के वी गो ऑन ऑब्जर्विंग आर सराउंडिंग्स। इसमें फिजिकल फैक्टर्स भी हैं, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, इसमें सोशल फैक्टर्स भी हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं, और बहुत सारी चीजों के बारे में वी गो ऑन रेजिंग क्वेश्चन मार्क्स इन आवर माइंड कि ये क्या है। हमें कुछ गैप नजर आता है, हमें समझ नहीं आ रहा होता। वो जो मैंने 5 टाइप्स आपके साथ अभी सवाल की तस्करा की है, उन्हीं 5 में से कोई ना कोई एक चीज है जो हमें तंग कर रही है। सो आवर माइंड स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट थिंग टू फाइंड द आंसर। और जब हमारा दिमाग आंसर ढूंढ रहा होता है, तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग जो है वो किस तरह आंसर को ढूंढता है। इसमें एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो ये साइकोलॉजी में आती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये होती है कि हमारा दिमाग जो है वो उसकी उसकी जो भी कैपेसिटी होती है ना, उसकी कैपेसिटी के अंदर कुछ एक पोर्शन होता है जिसके अंदर वो अपने आप को एक्सटेंड करके अननोन को नोन में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर हमारा सवाल या हमारा कोई भी इशू, चैलेंज उस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के अंदर आ रहा है, तो होता यह है कि हमारा दिमाग जो है वो एफर्ट करता है और खुद से जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उसकी बेस पर उसको आपस में मिक्स एंड मैच करके, और बहुत सारा, मेरा ख्याल में आज तक न्यूरोसाइंस खुद इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकी। और अभी तक ये एक एम्बिग्विटी हमारे लिए कि जहन की वर्किंग बिल आखिर किस तरह होती है, अंदर वो किस तरह कनेक्शंस डेवलप होती है न्यूरॉन्स के दरमियान, जिसकी वजह से हम कोई चीज क्रिएट या हम कोई अननोन चीज को नोन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अलबत्ता होता ही है कि इसको थ्योरी ऑफ चेंज इस तरह एक्सप्लेन करती है कि एक कॉन्सेप्ट, मैं इसका पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। देखिए, थ्योरी ऑफ चेंज जो है वो प्लेटो ने दी, और उसने कहा कि दो चीजें होती हैं। बहुत सिंप्लीफाई करके अगर एक्सप्लेन करूं, वन इज मैटर एंड द अदर थिंग इज फॉर्म। सो मैटर में चेंज नहीं आता, फॉर्म में चेंज आता है। ठीक है, ये प्लेटो कह रहे हैं कि मैटर में चेंज नहीं आता, फॉर्म में चेंज आता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल जो एक टिपिकल सॉर्ट ऑफ एग्जांपल दी जाती है, दैट इज ऑफ स्टोन। एक मार्बल का स्टोन है, इट इज मेटल। सो यू कैन गो ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म। आप कभी उससे स्लैब बना सकते हैं, कभी आप उससे पटरा बना सकते हैं, कभी उससे बेलन बना सकते हैं, कभी उससे बर्तन बना सकते हैं। यू कैन गो ऑन मेकिंग आई मीन अनलिमिटेड सॉर्ट ऑफ शेप्स आउट ऑफ इट। तो वो जो शेप्स हैं दोज आर फॉर्म्स, मगर मैटर तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैटर वही है, तो मैटर इज कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म। उसने कहा कि कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो कि अल्टीमेट है और वो चेंज नहीं हो रही, मगर ये जो मटेरियल दुनिया है इसके अंदर फॉर्म्स जो है वो चेंज हो रही है। अब उसने कहा कि होता ही है, अगर मैं माइंड के अंदर एक्सप्लेन करूं तो मतलब बहुत ही सादा करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें हो सकता है कोई एम्बिग्युइटी भी पैदा हो जाए, और ये चीजें ऐसे नहीं है, मगर ये कि फॉर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू मेक देम, बिल्कुल एक आप समझिए कि मैं 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को 2 डायमेंशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हमारा माइंड उसको कैप्चर कर ले। अच्छा, उसमें कुछ रियलिटीज उसकी लॉस्ट हो जाएंगी। तो
marble is itself a matter, and any shape cutting carved out of that marble is actually form. So form जो है वो चेंज होती है, कुछ अल्टीमेट रियलिटीज हैं जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होती, मगर इस दुनिया के अंदर जो चीजें हैं उनकी फॉर्म्स जो है वो चेंज होती रहती हैं. अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को अगर वी अप्लाई हाउ आर माइंड मेक कॉन्सेप्ट, तो ये कहते हैं कि देखिए हमारा माइंड भी एक मैटर है और ये अपनी फॉर्म को चेंज करता है. होता ये है कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट हम अपने दिमाग में बनाते हैं, होल्ड करते हैं, तो होता ये है कि या कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम उसको अपने दिमाग में होल्ड करते हैं. और वो जो हम होल्ड करते हैं वो एक एक स्पेसिमन होता है, जिसके नतीजे में हमारा जो माइंड का मैटर है वो उस फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर जाता है. सो कॉन्सेप्ट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बाहर की कोई चीज है एंड इट इज बीइंग डिलीटेड एज वेल. ये एक ऐसी चीज होती है जो हमारा माइंड वो शेप इख्तियार कर जाता है. अच्छा, तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट होल्ड हुआ और कॉन्सेप्ट की जो शेप है, उस शेप को जब हमारे माइंड के मैटर ने देखना शुरू किया, तो वो मैटर जो है वो थ्योरी ऑफ चेंज के तनाजुर में उस कॉन्सेप्ट की शेप ले जाता है. तो जो कॉन्सेप्ट की शेप है वो हमारे माइंड में, आप समझ लें, एक तरह से इम्प्रिंट हो जाती है. सो इसको टेंजिबल इस तरह ना लीजिएगा कि कोई कुर्सी की शक्ल प्रिंट हो गई दिमाग में. हम इसको कॉन्सेप्ट की फॉर्म में बात कर रहे हैं. चूंकि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट यू कैन गो ऑन आस्किंग राइट नाउ. अगर क्लैरिटी हो गई है तो हम आगे मूव करते हैं. जी, मुझे थोड़ा बता दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई है या वी नीड टू एक्सप्लेन इट अ बिट मोर. सर होल्ड होने के बाद वो कैसे चेंज हुई इसको रिपीट कर सकते हैं आप? देखिए, थ्योरी ऑफ चेंज ये कह रही है कि मैटर अपनी फॉर्म को चेंज करता है. सो इफ देयर इज एनी स्पेसिमन अवेलेबल फॉर दैट मैटर, कि आप अपने दिमाग अपनी फॉर्म को इसमें चेंज कर लें, तो वो उसको चेंज कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मार्बल से एक स्लैब बनानी है, तो हम उसकी एक डायग्राम देंगे ना बनाने वाले को. तो डायग्राम देंगे बनाने वाले को, बनाने वाला उस डायग्राम को देखता रहेगा और उस मार्बल में से कट आउट करके वो वाली चीज हमें बना देगा. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक गोल बनाना है, तो वो गोल की डायमेंशंस को देख के कट आउट कर देगा हमें उस स्पेसिमन में से, उस मैप में से. तो इसी तरह वो कॉन्सेप्ट होल्ड होता है और हमारे माइंड का जो मैटर है ना, वो उसकी शक्ल इख्तियार कर जाता है. तो इस तरह वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बन जाता है. सो वी आर द वन जो उसको कंस्ट्रक्ट कर होते हैं अपने दिमाग में एज पर आर ऑब्जर्वेशन और आर थिंकिंग. ठीक है, तो यहां तक अगर बात हमने होल्ड कर लिया तो फिर हम आगे चलते हैं. सर प्लाटो ने कहा था कि जो हमारी नॉलेज होती है वो चेंजिंग चीज़ों से नहीं आ सकती, तो ट्रू नॉलेज जो है वो हम अपने सेंसेस से जो है वो हमारे सेंसेस से नहीं आ सकती, लेकिन हम डेली लाइफ में जो भी चीज़ें परसीव करते हैं वो अपने सेंसेस से ही करते हैं. तो इसमें थोड़ा सा अगर क्लैरिटी मिल जाए. हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल है. मैंने आपसे ये कहा था कि आई एम कन्वर्टिंग द 3D कॉन्सेप्ट टू 2D कॉन्सेप्ट, और मैं इसकी डिटेल्स में एंटर नहीं हो रहा क्योंकि मैं आगे जाना है, मुझे आगे जाके नतीजा असल में कुछ और लेना है. तो अगर आप इस क्वेश्चन को पाक कर लें और हम इसको आखिर में जाकर ले लेंगे, अगर हमारे पास श्योर टाइम सर. होगा तो we'll take this. श्योर सर. और अदरवाइज वील हैव टू अरेंज अनदर सेशन फॉर दिस थिंग, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और मैंने ओके इसको बस, सर. आप समझे. हाँ, मुझे भी अंदाजा था कि मैं छेड़ूंगा तो देयर बी अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइजिंग फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, मगर आई हैव टू मूव फॉरवर्ड. तो अगर इसको आप बात कर लें तो फिर हम आगे चलते हैं. ठीक हो गया? अच्छा. अच्छा, एक आपको एक बात समझ में थोड़ी सी आ गई कि हमारा माइंड जो है वो कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो रहा है. इस चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ लेके आना चाह रहा था. देखिए, यहां से आज का हमारा असल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. ये जो हमारा असल कॉन्सेप्ट जिसको हमने आज थ्रैश करना है, जिसको हमने देखना है, और हम 9:34 पे आ चुके हैं. सो होपफुली मैं इसको 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा. वैसे तो बहुत गहरा टॉपिक है और मुझे आपने भी थोड़ा मदद करनी है अगर मैं कहीं अननेसेसरी डिटेल्स में एंटर हो रहा हूँ, तो जस्ट आई मीन गिव मी अ पिंग सो दैट आई अवॉइड एंटरिंग इनटू द अननेसेसरी डिटेल. देखिए, सदरा का कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और मैंने जितनी बेस बनाई है वो यहां तक लाने के लिए बनाई है. सदरा का कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि एन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन इज बॉर्न आउट ऑफ एंग्विश, या लेट मी रीफ्रेज दिस वर्ड, कि अ क्वेश्चन इज बॉर्न आउट ऑफ एग्जिस्टेंशियल एंग्विश, यानी सवाल वजूदी कर्ब से जन्म लेता है. बहुत ही अजीब किस्म का ये जुमला है
और कभी हमारे पास डिटेल टाइम हुआ तो हम इसको विल ट्राई टू ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन दिस वर्डिंग और जो क्वेश्चन का तस्वर है मुल्ला सदरा का एंड इकबाल्स कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी। बहुत पैरेलल चीजें हैं ये। तो कभी टाइम हुआ तो इंशाल्लाह वो पैरेलल भी उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अभी सवाल वजूदी कर्ब से जन्म लेता है। कुछ लोग इसका ये मतलब भी निकालते हैं कि मिसाल के तौर से हमें जुस्तजू है कि हम जाने हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, यानी ऑल दी क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर एग्जिस्टेंस हम वो सवाल पूछें, तो लिहाजा वो सवाल बेसिकली उस कर्ब से जन्म लेता है। मगर मैं ये कहूंगा कि नहीं, इस कर्ब का मतलब कुछ और है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि एक एक अदीब, एक शायर जब एक तख्लीक करता है तो वो अपने यानी किसी कर्ब से गुजरता है, वो कर्ब से गुजरता है तो कुछ तख्लीक करता है। बेसिकली ये इसी तरह का एक कर्ब है, यानी हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद जब एक अजियत और एक कर्ब से गुजरता है तो फिर वो सवाल उठता है। वरना वो सवाल, इसीलिए जो लोग ज्यादा हसास होते हैं वो ज्यादा सवाल उठाते हैं, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा गहरी होती है और वो उस कर्ब और उस अजियत को ज्यादा सह सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ड्रामाई भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद थोड़ा सा एग्जैजरेट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तवज्जो हमारी ज्यादा आ जाए और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसके आंसर को अनफोल्ड करने की कोशिश करें। सो देखिए, सदरा ये कहता है कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम एग्जिस्टेंस का एक सफर तय कर रहे हैं। और जैसे मैंने अभी प्लेटो की बात की थी कि प्लेटो ये कहता है कि फॉर्म्स में चेंज आता है, मैटर में चेंज नहीं आता। उसके बरक्स मुल्ला सदरा इज 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 कन्विंस्ड ऑन द पॉइंट दैट एक्चुअली द मूवमेंट इज नॉट इन फॉर्म्स, इट ये हमारे जौहर के अंदर तब्दीली आती है। यानी ऐसा 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 है कि इंसान कभी खाक और मट्टी था और उसके वजूद ने वहां से तरक्की करके जौहरी तब्दीली के नतीजे में वो नबातात बन गया, और उसके बाद यानी जमादात से नबातात बन गया, और जौहरी तब्दीली के बाद वो नबातात से हैवानात बन गया और हैवानात से इंसान बन चुका है, क्योंकि उसका वजूद मुसलसल ऊपर की तरफ एक जर्नी में है, एक सफर कर रहा है। और इस सफर में होता यह है कि वजूद जौहरी तब्दीलियां अपने अंदर लेके आता है, क्योंकि हरकत एक फलसफे का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ वो ये आर्ग्यू करता है कि हरकत जो है वो क्विडिटी के अंदर या फॉर्म के अंदर, माहियत के अंदर नहीं होती, बल्कि हरकत जो है वो जौहर के अंदर होती है। बाकी अक्सर जो फलसफी हैं वो इसी बात के कायल हैं कि हरकत जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से वो जौहरी तब्दीली के कायल नहीं है। मगर मुल्ला सदरा ये कहता है कि नहीं, वजूद है वो जौहरी तब्दीली के साथ एक वजूद की हालत से दूसरी वजूद की बेहतर हालत में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमने कुछ चीजें आज प्रीटेक्स्ट के तौर पे उठा लेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू एंटर इनटू फिलोसफिकल डिटेल्स ऑफ दीज थिंग्स। तो आपने एक, मैंने आपको प्रीटेक्स्ट दिया, एक एक मैंने आपको आप समझ लें पॉस्टुलेट्स दिए हैं इसकी थियरी के। आप पॉस्टुलेट को उठा के अपने कॉन्टेक्स्ट को बना लें ताकि आज की बात हम समझ सकें। सो पहली बात हमने एक एक उठा ली। सो ह्यूमन बीइंग्स आर द जर्नी, वी हैव स्टार्टेड अ जर्नी फ्रॉम नथिंग। ठीक है, जिसको परवरदिगार भी कहता है कि मैंने इसे ऐसे तकवीम पे बनाया, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, और फिर मैंने इसको पस से पस हालत की तरफ पलटा दिया। वहां से इंसान अपने सफर को जारी रखे हुए। अब होता ही है, हम एक पॉस्टुलेट मैंने पहले दे दिया था, उसको आपने रख लिया। ठीक है, ये हरकत जो है जौहर के अंदर है। सो सब्सटेंशियल चेंज आ रहा है वजूद के अंदर, और वो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो रहा है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि रियलिटी ग्रेडेशन में एग्जिस्ट करती है। मुल्ला सदरा इस बात का कायल है कि रियलिटी ग्रेडेशन में एग्जिस्ट करती है। वो इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट की एग्जांपल देता है कि किसी वजूद में एग्जिस्टेंस कम है, किसी वजूद में एग्जिस्टेंस ज्यादा है। सो व्हेन द एग्जिस्टेंस इज ऑन लोअर लेवल, तो वो लोअर लेवल्स के अंदर उसके पास इंटेंसिटी ऑफ एग्जिस्टेंस कम है, मगर वो अगले लेवल्स पे कैसे जाता है, उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ एग्जिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। वो अपने अंदर इंटेंसिटी ऑफ एग्जिस्टेंस बढ़ाता है ताकि वो एक बेहतर से बेहतर वजूद बनता चला जाए। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ एग्जिस्टेंस बढ़ाना है, सो हर स्टेज के ऊपर उसके अंदर खालीपन मौजूद है। सो दो जो मैंने पॉस्टुलेट आपको दिए थे, पहला कि हरकत जो है
मोशन जो है वो बेसिकली सब्सटेंशियल है और जौहर के अंदर वाक़ हो रहा है, बस वजूद एग्जिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट और एग्जिस्टेंस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा पॉस्टुलेट जो मैंने दिया वो ये कि रियलिटी ग्रेडेशन में एग्जिस्ट करती है, लिहाजा जब रियलिटी ग्रेडेशन में एग्जिस्ट करती है तो नीचे वाले लेवल पे जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ एग्जिस्टेंस कम होती है, जैसे लाइट की इंटेंसिटी कम है, और जो उससे ऊपर वाला दर्जा होता है उसमें इंटेंसिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ज्यादा होती है। बस एग्जिस्टेंस अपने अंदर एग्जिस्टेंस की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाता चला जाता है। इसको कहते हैं इंसान कामिल। वी आर मूविंग टुवर्ड्स परफेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब जैसे लाइट है, लाइट को आप बढ़ाते चले जाएंगे, कम करते चले जाएंगे तो साफ सी बात है रेजिस्टेंस लोअर लेवल का है, और उसको बढ़ाते चले जाएंगे लाइट को तो ये एग्जिस्टेंस। अब इस इंटेंसिटी को बढ़ाने का जो अमल है ना, ये वो वजूदी कर्व है। यानी इंसान चूंकि अपने एग्जिस्टेंस के अंदर खालीपन का एहसास कर रहा होता है, चूंकि वो एम्प्टीनेस का और वॉइड का एहसास कर रहा होता है, और उसे अवेयरनेस है कि मैं अभी नामुकम्मल हूं, मेरे अंदर खामियां हैं। वो जो इंसान, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट होना चाहता है, ये इननेट एक आप समझ लें हमारी सोल की एक इननेट एबिलिटी है। एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू बिकम परफेक्ट। वी एटलीस्ट अगर हम परफेक्ट नहीं भी होते, वी ऑल लव परफेक्शन। तो व्हेनेवर वी कंपेयर आवरसेल्फ फ्रॉम दैट परफेक्शन, तो होता ये है कि हमें अपने वजूद के अंदर खालीपन का एहसास होता है। इसकी मैं एक रियल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ यू गो मीट योर फ्रेंड जो कि किसी सब्जेक्ट में बहुत डीपर नॉलेज, मेहनत किया उसने, डीपर नॉलेज है, आप उसके साथ बैठेंगे, जब वो आप कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार इसने बहुत मेहनत की, उफ ये कहाँ से ये बात निकाल के ले आया। सो व्हेनेवर यू विल कम बैक टू योर ओन स्पेस, आप अपने कमरे में वापस आएंगे, तो होगा ये कि सबसे पहला जो एहसास है विच विल हिट यू इज आपका अपना खालीपन, your awareness of your void, of the void you have in your inner self. So वो जो कर्व है ना इंसान को, मैंने इसको इसलिए इस रियल एग्जांपल से कनेक्ट किया है ताकि हम उस कर्व के लफ्ज को महसूस कर सकें कि वो वजूदी कर्व क्या है, वो एग्जिस्टेंशियल पेन क्या है, एंग्विश क्या है। सो वो जो हमारी एग्जिस्टेंशियल एंग्विश है ना, जो हमारा खालीपन का एहसास है, उस खालीपन के एहसास के अंदर से एक ख्वाहिश जन्म लेती है कि हम अपने आप को मुकम्मल करें, जिसको कहते हैं क्वेश्चन। अब आई डोंट नो मैं इसको कनेक्ट कर पाया हूं नहीं कर पाया। अगर यहाँ थोड़ा सा मुझे मदद कर दें कि मैं किस हद तक कनेक्ट कर पाया हूं, तो वी कैन गो ऑन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी जी, सारे सो गए। जी बहुत अच्छा है। अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें तो मैं, वो जो आप कह रहे थे ना कि मैं एग्जेजरेट कर रहा हूँ और ड्रामा ऐड कर रहा हूँ, तो वो वाला पार्ट में फिलअप कर सकता हूँ। जी, कोई एक आध कमेंट और आ जाए, क्योंकि जैन भाई का कमेंट है, मुझे ये लग रहा है कि शायद बाकी हमारे जो साथी हैं अभी किसी वो अभी किसी कर्म में है, किसी एंग्विश में है। सो व्हाई नॉट टू ओपन अप एंड शेयर योर थॉट्स और योर क्वेश्चंस और योर फीलिंग्स और योर एनीथिंग व्हिच यू हैव इन योर इनसाइड। सर मेरे ख्याल में अभी जो आपने बात की है वो ये है कि लाइक व्हेन वी बिकम अवेयर ऑफ द वॉइड कि अच्छा हम ये एक सर्टेन चीज लैक करें, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो पहला स्टेप दैट वी टेक इज आस्किंग अ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपने वो जो कॉन्सेप्ट की एग्जांपल दी कि हम किसी फ्रेंड के पास जाते हैं, तो जब हम अपनी स्पेस में वापस आते हैं तो अच्छा हम उसी चीज को सोचना शुरू करते हैं और हम खुद अपने करंट नॉलेज को क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं कि अच्छा ये हम इसको आगे इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, या इसमें जो लूप होल्स हैं उसको फिल कैसे कर सकते हैं। जी, मैं बिल्कुल सही पहुंच गए। मैं थोड़ा सा इसको एक दफा रिफ्रेज करता हूं और फिर हम आगे मूव करते हैं। देखिए, यानी बेसिकली इंसान जो है वो उसका वजूद, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो कंप्लीटनेस की तरफ, वो परफेक्शन की तरफ सफर कर रहा है। एंड वी ऑल आर, जो डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, दे ऑल आर एक्चुअली डायरेक्टेड टू वन ऑब्जेक्टिव, वो ये कि हमने अपने एग्जिस्टेंस को कंप्लीट करना है। तो हमारे एग्जिस्टेंस की जो कंप्लीटनेस का सफर है, उसके अंदर जो हमारा एग्जिस्टेंस इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें एहसास है ना कि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, और हम अभी सिर्फ जानने की हद तक नहीं, हम अभी कमजोर हैं।
हम अभी नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हम चेंज करना चाहते हैं मगर हम नहीं कर सकते इस वक्त वी डोंट हैव दैट, आई मीन दैट सॉर्ट ऑफ पावर इन आवर हैंड कि जो हम उसको चेंज कर जाए। तो होता ये है कि ये जो इनकम्प्लीटनेस ऑफ एग्जिस्टेंस का एहसास है, ये खुद ब खुद हमारे अंदर सवाल को जन्म देता है। ये वो जगह है जहां से सवाल जन्म लेता है। सो मुल्ला सदरा ने बहुत ही पिक्यूलियर सेंस में जाके ये बात बताई, और मेरा ख्याल में माइंड ब्लोइंग है कि आज तक हम सब समझते थे कि शायद हमारे जहन में ऑब्जर्वेशन करते हैं और वहां कोई गैप नजर आता है तो हमें एक्सटर्नल गैप से सवाल पैदा होता है। नहीं 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 नहीं, असल में जो सवाल का मोटिव है वो बेसिकली जो है वो स्टिमुलाई जो है दैट एक्चुअली लाइज इन आवर इनर सेल्फ, और वो क्या है कि हमारी जो अपनी इनकम्प्लीटनेस है उसकी जो एंग्विश है हमारे अंदर कि हम गैर मुकम्मल हैं, हम नहीं जानते, हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हम कमजोर हैं। ये जो एहसास है ये हमें हिट करता है कि हम क्वेश्चन निकालें। यानी ये वो बेसिकली तहरीक है, स्टिमुलाई है, जिसकी वजह से हमारे वजूद में क्वेश्चंस आते हैं और फिर हम अपने आप को कंप्लीटनेस का सफर शुरू करते हैं। सो यहां तक हम मेरा ख्याल में तकरीबन सेम पेज में है, तो व्हाई नॉट टू मूव ऑन दी सेकंड स्लाइड। अच्छा, अब होता ये है कि now the very question which has risen in our mind, it goes on stimulating our reason. एक सिस्टम ऑफ रीजन परवरदिगार ने हमें दिया हुआ है, वो जो सिस्टम ऑफ रीजन है ना ये उसको स्टिमुलेट करना शुरू करता है। सो व्हाट वी डू इज वी यूज आवर पास्ट नॉलेज इन reconfiguring the new reality. So we reconfigure our past knowledge to find the new reality. इसको हम क्या कहते हैं? उर्दू में एक सादा सा लफ्ज है, मजहूल से मालूम में तब्दील करना, या मालूम की मदद से मजहूल को मालूम में तब्दील करना। सो वी हैव certain variables which are known to us and obviously a variable which is unknown to us, जिसके बारे में हम रिसर्च करें, एंड वी व्हाट वी डू इज वी गो ऑन यूजिंग द नोन वेरिएबल्स टू रिवील द अननोन वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हमारे पास अननोन है उसको हम रिवील करने की कोशिश करते हैं। आप कोई एक्सपेरिमेंटेशन, कोई रिसर्च उठा लें, उसमें यही करते हैं। वी यूज आर एग्जिस्टिंग नॉलेज और उसके ऊपर हम बिल्ड अपॉन करते हैं। वी यूज डिफरेंट ऑपरेशंस, चाहे वो सोशल साइंसेस के रिसर्च के ऑपरेशन हो, मैथमेटिकल के हों, एक्सपेरिमेंटल साइंसेस के जो है वो तरीक़ेकार हों, बट वो ऑपरेशंस को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिवील और डिस्कवर दैट अननोन रियलिटी बेस्ड अपॉन दी थिंग्स वी नो। तो अब बात ये हो गई कि लिहाजा हमने देखा कि जब एग्जिस्टेंशियल वर्ल्ड से एक क्वेश्चन उठा है, अर्ज उठी है, उसने स्टिमुलेट किया है हमारे रीजन सिस्टम को, और रीजन सिस्टम ने क्या काम शुरू कर दिया, उसने प्रायर नॉलेज के ऊपर बेस करके उसके आंसर को तलाश करने की कोशिश करती है। और इस चीज को मुल्ला सदरा क्या कहता है कि रीजन इज नॉट स्टैटिक। इसीलिए परवरदिगार ने कुरान मजीद में जितनी दफा भी अक्ल इस्तेमाल करने का कहा है, अक्ल को एज अ वर्ब यूज किया है। कुरान हैज नेवर यूज्ड द वर्ड अक्ल एज अ नाउन, बिकॉज ये कोई स्टैटिक चीज है ही नहीं। आप देखिए ना, रीजन इज नॉट अ स्टैटिक, इट इज एग्जिस्टेंशियल लाइट इन मोशन। एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट विच वी वर डिस्कसिंग, कि हम जब वजूद के पिछले मरहले पे होते हैं तो हमारे अंदर लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइट की इंटेंसिटी बेसिकली वजूद की एग्जिस्टेंस की इंटेंसिटी कम होती है, और हम हमारे वो वॉइड है हमारे अंदर, वो वॉइड है हमारे अंदर जो हमारे अंदर एक एग्जिस्टेंशियल कर्व पैदा करता है, एक एंगुश पैदा करता है, कर्व पैदा करता है, वजूदी कर्व, जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है। और फिर मुल्ला सदरा ये कहता है कि इट इज एग्जिस्टेंशियल लाइट इन मोशन। सो रीजनिंग is actually our existence journey towards perfection. ये दिमाग की कोई एक्टिविटी नहीं है खाली कि दिमाग में कुछ गिरारियां हैं जो चल रही हैं, ये सिर्फ दिमाग की एक्टिविटी नहीं है, ये आपका पूरा एग्जिस्टेंस एक मोशन के अंदर आ जाता है जो कि अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। अब ये बात नहीं मालूम है किस हद तक समझा पाया हूं। यानी आम फिलोसोफर जो है वो क्वेश्चन को एक मेंटल एक्टिविटी, इंटेलेक्ट की एक्टिविटी के तौर पे लेते हैं। मुल्ला सदरा इसको एक एग्जिस्टेंशियल मोशन की तरह लेता है कि बेसिकली जब आपने ये महसूस किया कि मेरा वजूद एक कमजोर वजूद है, मैं नहीं जानता, और आपने वो सवाल उठाया और अपने रीजनिंग सिस्टम को किया है, तो यहां से योर जर्नी टूवर्ड्स द बेटर सेल्फ हैज स्टार्टेड, क्योंकि अब यू आर कन्वर्टिंग योर ओन सेल्फ इनटू अ बेटर सेल्फ। ठीक है, और यहीं से ये सेल्फ खुद ही के साथ भी जुड़ता है, जो कि एक अलग से मौजूद है। इंशाल्लाह इसको फिर से कहीं देखेंगे।
सो स्टेप 2 में क्या हुआ? स्टेप 1 में आपने देखा कि वो एक अर्ज वॉइड की वजह से पैदा हुई, एक एंग्विश पैदा हुई, उस एंग्विश से स्टेप 2 में हमने देखा कि हमारा इंटेलेक्ट मोशन के अंदर आ गया हुआ है, सो इट इज इन मूवमेंट। और हमारा ये इंटेलेक्ट जब हमारा मूवमेंट में आया तो बेसिकली एग्जिस्टेंस हमारा मूवमेंट के अंदर आ चुका। स्टेप 3 इज अवेकनिंग ऑफ द सेल्फ। देखें, सवाल ये है कि मुल्ला सदरा ये कहता है कि हमारी 3 डोमेन्स है। ये बात हमें पता है कि हमारी 3 डोमेन्स है, एक इंटेलेक्चुअल डोमेन है, एक इमोशनल डोमेन है, एक फिजिकल डोमेन है। ठीक है, हम एजुकेशन के अंदर इसको कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन। सो कॉग्निटिव डोमेन इज एक्चुअली कॉग्निशन, जो कि सोचने और गौर फिक्र करने से ताल्लुक रखती है। एंड दी साइकोमोटर डोमेन इज जो हमारा साइको और मोटर है। मोटर मीन्स आर मसल्स और साइको मीन्स हमारे जो ब्रेन के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन हो रही है। वो रिफ्लेक्स आर्क हो गए, वो रिफ्लेक्स एक्शंस हो गए, और वो स्टिमुलाई रिस्पॉन्स और वो सारा जो आपका सिस्टम है बिलाखिर वो सारा जो है वो हमारा साइकोमोटर में आ गया, जिसको हम स्किल्स भी कहते हैं। एंड दी थर्ड पार्ट इज दी अफेक्टिव, जिसमें हम कल्ब को लेते हैं। कल्ब में मेरे ख्याल में जो बात की जा रही होती है बेसिकली द फिजिकल पार्ट इज जो उसका स्पिरिचुअल पार्ट है वो अलग है, जो सोल वाला पार्ट है। जो फिजिकल पार्ट है इट इज एक्चुअली आर एंडोक्राइन सिस्टम, चूंकि हमारे इमोशन सारे जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम से रेगुलेट हो रहे हैं। एंड हार्ट इज दी सेंटर ऑफ दी ऑल थिंग, क्योंकि ये पंप होके बिलाखिर ब्लड के जरिए ही हमारे डिफरेंट अपनी साइट्स पे जाते हैं और वहां पे जाके अपने डिफरेंट जो इफेक्ट्स होते हैं उनको वहां शो करते हैं। सो हमारे पास 3 ही चीजें हैं, 3 ही डोमेन्स हैं। तो मुल्ला सदरा ये कह रहा है कि बेसिकली जब सवाल पैदा होता है तो ये बात हमारी जबान से शुरू होती है। मैं चाहूंगा इस जुमले पे गौर कीजिएगा। वो ये कहता है कि ये बात हमारी जबान से शुरू होती है, हमारी अक्ल को हरकत देती है, हमारे कल्ब से भी इसका ताल्लुक है, कल्ब को भी इन्वॉल्व करती है, और फिर हमारे वजूद से जाहिर होती है। अब देखें सवाल क्यों, मैं इसको आसान करके पेश करता हूं। ये सिर्फ थ्योरी तक से एक सवाल को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सवाल का मतलब अपनी सेल्फ को एक बेटर सेल्फ बनाना है। सो इफ यू जस्ट लिमिट योर क्वेस्ट ओनली टू द कॉग्निटिव डोमेन, सो व्हाट विल हैपन इज कि आपका कॉग्निटिव डोमेन तो डेवलप हुआ है मगर आपकी बाकी डोमेन सेल्फ के डेवलप नहीं हुए। सो आपका सेल्फ एक बेटर सेल्फ में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि तीनों आपस में हार्मनी के साथ डेवलप होंगे तो आपका सेल्फ जो है वो एक बेटर सेल्फ जाएगा। अब होता यह है कि तीसरे स्टेप में ये कहते हैं अवेकनिंग ऑफ द सेल्फ फ्रॉम आउटर क्वेश्चन टू द इनर वंस। सो वट एवर द रियलिटी यू हैव डिस्कवर्ड, नाउ यू हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग योर ओन सेल्फ विद दैट रियलिटी। क्यों? क्योंकि अब आपने उसको अपने वजूद के ऊपर लागू करना है और आपने उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। थ्योरी प्रैक्टिस गैप इज नॉट एक्सेप्टेबल ओवर हियर। मैंने आपको शायद इसमें कहीं कहीं और क्रिटिकल पेडागोजी पे बात करते हुए कहा था कि इस्तेमाल ये चाहता है कि हमारी एजुकेशन में थ्योरी प्रैक्टिस को गैप पैदा करे, क्योंकि दे डू नॉट वांट आर वांट कि हम अपने सेल्फ को वी गो ऑन कन्वर्टिंग आवर सेल्फ इनटू अ बेटर सेल्फ। तो ठीक है, आपने दिमाग तक सोच लिया, ब्रेक लगा दें। नहीं, मुल्ला सदर ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो द थर्ड स्टेप इज दैट यू गो ऑन अवेकनिंग योर ओन सेल्फ। जो भी आपने डिस्कवर किया है आप उसको फॉरन प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर भी अमल करते हैं और बाकियों के ऊपर भी लागू करने की कोशिश करते हैं। सो आप अपने से सोसाइटी को चेंज की तरफ लेके जाना शुरू करते हैं। सो हु मैं, व्हाट शुड आई डू, सेल्फ बिकम्स रिस्पॉन्सिबल नॉट पैसिव। अब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, नॉट यू कैनॉट गो ऑन रिमेनिंग पैसिव। ठीक है, अब होता यह है कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंशियल जर्नी फ्रॉम क्रिएशन टू द क्रिएटर। मैं अब क्रिएशन टू द क्रिएटर की बात को छोड़ दें, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी सेल्फ का दूसरा डोमेन भी जर्नी के अंदर आ चुका है। पहले कॉग्निशन कॉग्निटिव डोमेन आया था, उसके बाद आप ये समझें कि हमारे बाकी डोमेन्स भी इसके अंदर, क्योंकि अमल में अगर आपने लाना है तो यू नीड स्किल्स एज वेल एंड यू नीड इफेक्टिव डोमेन योर इमोशंस एज वेल, क्योंकि हर काम को करने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं अगर आप उसको रियल लाइफ में कर रहे हैं, एंड यू हैव टू ओवरकम दोज हर्डल्स एज वेल, दोज बैरियर्स। So you have to develop resistance in your own self. So as long as that resistance is not generated in yourself, or you have not generated that resistance in yourself, so you will not be able to achieve whatever you have planned for your own self. तो लिहाजा वो रेजिस्टेंस को बढ़ाना भी जरूरी है कि हमारे अंदर जो भी रियल लाइफ की इश्यूज हैं, चीज को प्रैक्टिकल करते हुए हम रियल लाइफ को हर्डल को भी ओवरकम करें। ये वो सफर है जो अक्ल के साथ इश्क का सफर है, जो इकबाल की आपने शायरी में खुद ही में पढ़ा होगा। तो इकबाल खुद ही में कहता है कि अक्ल के साथ साथ इश्क, तो वो इश्क को जो लेके आता है वो वही है कि व्हेन यू कनेक्ट योर ओन सेल्फ विद योर नॉलेज एंड यू स्टार्ट अवेकनिंग योर इनर सेल्फ,
कि जिसके अंदर अब ये मुझे अगर पता लग गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है जी। उसमें प्रैक्टिकल भी है, उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीजें आ जाती हैं। तो अगर आपको सवाल होगा आपकी जेब में तो आपने ये देखा कि तीसरे स्टेप तक आपकी एक्सिस्टेंस, आपकी सेल्फ मूव कर रही है। So the question is not a mental activity, is not a mere mental activity. It is actually a journey कि जो आपके एग्जिस्टेंस की वॉइड के एंग्विश से स्टार्ट होता है और वो आपके पूरे एग्जिस्टेंस को बेटर एग्जिस्टेंस की तरफ ले जाना शुरू हो जाता है, कि जिसके अंदर आप अपने तमाम डोमेन्स में चेंज क्रिएट करते हैं, जो कि फिर आपकी लाइफ की इंटेंसिटी यानी एग्जिस्टेंस की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और यू बिकम अ बेटर सेल्फ। अब देखें, उसी सब्सटेंशियल मोशन की तरफ बात आ रही है स्टेप 4 में, हरकतुल जोहरिया, सब्सटेंशियल मोशन। तो अब यानी होता यह है कि ये जो सब्सटेंशियल मोशन है, जब इंसान इस सफर को तय करता है तो फाइनली इंसान ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चला जाता है। यानी जब आप एक चीज को रिवील करते हैं, देन यू गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग दैट थिंग ऑन योर ओन सेल्फ, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग इन योर सोसाइटी, कि आप सोसाइटी के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज क्रिएट करें। और फिर उसमें जितना भी रेजिस्टेंस आता है, उसमें आंधी तूफान, मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ, तशबीह दे रहा हूँ, यानी जो भी मुश्किलात आती हैं, कानूनी मुश्किलात, लोगों की मुश्किलात, यानी आप खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें कि जब उन्होंने वो चेंज क्रिएट करने की कोशिश की तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सो एज लॉन्ग एज यू डोंट आस्क पीपल टू चेंज देयर सेल्फ, बहुत अच्छे हैं आप, यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन, यू आर सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, माशाल्लाह, वाह, यू आर एरिस्टोटल ऑफ आवर टाइम, यू आर आइंस्टाइन। मगर होता क्या है, whenever you go on implementing that knowledge in the society, और आप लोगों को कहें नहीं आप ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, तो वो सारे आपके दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि चेंज इज ऑलवेज। अब उसके अंदर जो रेजिस्टेंस आप शो करते हैं, जो हर्डल्स आप अचीव करते हैं और अपनी कमिटमेंट करते हैं, ये इमोशनल डोमेन को भी बहुत स्ट्रांग करता है। नाउ यू हैव द एबिलिटी टू कंसेप्चुलाइज समथिंग, टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग ऑन योर ओन सेल्फ, एंड टू गो ऑन इन योर सोसाइटी एंड चेंज योर सोसाइटी। और उसके अंदर जो भी तकलीफें, मुश्किलें आएंगी, यू आर देयर टू बेयर देम। तो अब ये जो जर्नी है, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन का सेल्फ का जर्नी है, जिससे आपकी सेल्फ मुसलसल मुसलसल ग्रो करती करती, हर नए चैलेंज के आगे ग्रो करती करती, ये एक ऐसी दुनिया में एंटर हो जाती है जिसे हम इरफान कहते हैं। ठीक है। इसीलिए इकबाल ये कहता है कि अक्ल खाली कुछ नहीं है, इल्म खाली कुछ नहीं है, एज लॉन्ग एज दैट इल्म इज नॉट कपल्ड अप विद इश्क, क्योंकि इश्क में इंप्लीमेंटेशन आती है। और जब आप इंप्लीमेंटेशन करने लगते हैं तो फिर आपको इल्म आपको मगरूर बनाता है। व्हेन यू गो ऑन नोइंग न्यू न्यू थिंग्स व्हिच अदर्स डोंट नो, ऑब्वियसली कुरान कहता है कि जानने वाले ना जानने वाले बराबर होते हैं, नहीं होते। सो यू स्टार्ट फीलिंग, आई मीन, एज अ बेटर सेल्फ, कि मैं वो जानता हूँ जो बाकी नहीं जानते। मगर वेन एवर यू गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग दैट इन द सोसाइटी, उसमें इतनी हर्डल्स आती हैं कि अब आपके अंदर वो इखलास पैदा होता है, अब आपके अंदर झुकाव, वो आजिज़ी, वो इनकिसारी सब पैदा होती है, जिसके अंदर, क्योंकि आप फिर हर्डल्स को फेस करते हैं, और हर्डल्स फेस करने से इंसान की रियलिटी जो है वो बहुत ही वो हो जाती है। सो ये बात है जो लीड करता है ह्यूमन एसेंस इटसेल्फ इवॉल्व होता रहता है। इस सारे प्रोसेस में ह्यूमन इवॉल्व होता रहता है, एंड द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम इंटेलेक्ट, इट एंटर्स इनटू द हार्ट एंड देन सोल एंड देन इरफान, और फिर इंसान इरफान की मंजिल में दाखिल हो जाता है। वही जो इकबाल कहता है कि निकल जा अक्ल से आगे कि ये नूर, चरागे राह है मंजिल नहीं है। ठीक है। तू है असीर मकां, ला मकां से दूर नहीं, वो जलवगाह तेरे खाकदां से दूर नहीं। सो ये वो जो सारी दावतें, ये सेल्फ को दावत है। और ये इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी रिसर्च। ये हम कोई शायराना बातें नहीं कर रहे हैं, इट इज वेरी मच द रिसर्च विच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट टॉपिक, और जो अगले आपके सेशंस में होंगे। सो इफ योर रिसर्च इज नॉट लीडिंग योर इंटेलेक्ट towards your heart, and your heart is not leading towards your soul, the soul is not leading you to a higher human status of इरफान, तब तक ये है कि आपकी रिसर्च, सो रिसर्च बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज है, ये कोई मजाक नहीं है। ये अपने वजूद का बेहतरी की तरफ सफर है। इट इज ए टूल जिसके जरिए, जो कि उठता है हमारी जो सेल्फ के अंदर वॉइड है उसके कर्ब से, हमारे एग्जिस्टेंशियल कर्ब से उठता है। और ये
इस ये पूरा सफर तय करता हुआ बिल आखिर हमारे पूरे वजूद को बेहतर मरहले में दाखिल कर देता है। ठीक है जी। सो मूविंग ऑन टू दी, आई थिंक द लास्ट स्लाइड, इंटीग्रेशन विद थ्योरी ऑफ चेंज। मेरा ख्याल में मैं इसको थ्योरी ऑफ चेंज के साथ इंटीग्रेट नहीं करता, ये एक और थ्योरी ऑफ चेंज है, ये वो थ्योरी ऑफ चेंज नहीं है। ये बेसिकली 1990s में थ्योरी ऑफ चेंज बनाई गई थी, और ये आजकल जितने भी हमारे बड़े इंटरनेशनल बिजनेस या आप समझ लें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब इस मॉडल पे काम करती हैं। ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर लेता हूँ क्योंकि हमारे मेंबर्स बहुत तेजी से ड्रॉ हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज का सेशन जो है वो वाकई चैलेंजिंग था। वो 20 से 17 हो गए, उन्होंने कहा काफी हो गई है आज के लिए। अब मेरे ख्याल में एक हफ्ता हमें सुकून करना चाहिए जी। सो द कंक्लूजन इज, अ क्वेश्चन इज नॉट जस्ट फॉर नोइंग बट फॉर बिकमिंग। और प्यारी बात कंक्लूजन है। So research, I mean, replace this word question with research. A research is not just for knowing; it is for becoming. It awakens intellect, stirs the self, and transforms essence. तो ये तीनों चीजें हमारी रिसर्च में पूरी होनी चाहिए. Takes humanity from who am I or what must I become. Mullah Sadra, a question that seeks an answer is limited. A question that seeks an answer is limited. A question that transforms the questionnaire is genosis. वो सवाल जो सवाल करने वाले को बदल दे, वो इरफान है। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे नहीं मालूम कि हम कहाँ तक सक्सेसफुल हुए आपके इस आज के सेशन में, बट आई एम सॉरी, आई डिडंट हैव द टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ मोर फॉर दिस सेशन। तो लेट्स एंटर इनटू द Q&A सेशन। लेट्स सी कि आज के क्वेश्चंस क्या है जी। ओवर टू द मॉडरेटर, थैंक यू सर मेरा एक सवाल है। जी। सर इस जैसे कि आपने कहा कि जब हम फील करते हैं कि हमारे अंदर एक कमी है किसी चीज की, तो फिर हमें अजियत होती है, कर्ब। तो आजकल ये अजियत जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई, तो इसको मजीद यानी कि ये ज्यादा कैसे हो सकती है कि हम हमारे अंदर तजस्सुस हो और हम अ, चीजों को सर्च करें। देखिए, उसका जवाब मैंने बीच में दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए, कभी कभी होता ये है कि थिंग्स विच वी आर डिस्कसिंग आर आउट ऑफ आवर ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से बाहर होती है, मगर हमें हारना नहीं चाहिए। और और मतलब बोली थी ना कि कुछ ट्रीटीज थी जो उसने अपने साथ की थी। उसमें मसलन एक ट्रीटी थी कि अगर मुझे कोई किताब पढ़ के समझ ना आए तो मैं उसको समझने के लिए कोई आसान किताब नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर वो लिखने वाले के दिमाग में आ सकती है तो मेरे दिमाग में भी आ सकती है। सो ये जो एवेन्यूज आज ने ओपन किए हैं कि क्वेश्चन जो है वो इट इज नॉट मेयर मेंटल एक्टिविटी, इसको एक्सप्लोर करें मजीद, इसको एक्सप्लोर करें, इस पे क्वेश्चंस करें, इसको एक्सप्लोर करें, चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि एक रिसर्चर रिसर्च को जितना डीप समझता होगा, वो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को उतना ज्यादा होल्ड करके रख सकेगा ताकि वो उसके एसेंस को टच कर सके, और वो रिसर्च एक मेयर रिसर्च एक्टिविटी ना रहे। जी, कोई और सवाल? अच्छा, एक सवाल जो है हमारे पास चैट पे भी है। जी, अच्छा, वो ये कह रही है, अस्सलाम वालेकुम, सवाल पूछने की एक बड़ी वजह हमारा बशर्ती रवैया है कि जब सवाल किया जाए तो इसे बदतमीजी के समझे में या मनफी समझा जाता है, जिसकी वजह से सवाल जहन भी एक खामोश करना पड़ता है। तो इस सूरत हाल में क्या करें? जी बिल्कुल ऐसा ही, आपकी बात सही है। हमारे कल्चर के कुछ इश्यूज हैं और उन इश्यूज को हमें फाइट बैक करना, हमें एटलीस्ट अगर हम अपने बड़ों को तब्दील नहीं कर पाए तो हमें कम से कम ये सोचना होगा कि कल को जब जिम्मेदारी हमारे हाथ में आएगी तो हमने अपने बच्चों के साथ ये काम नहीं करना है। चेंज इसी तरह क्रिएट होता है। और प्लस ये है कि सवाल उठाएं, हर चीज पे डिस्कशंस करें, और मुमकिन है कि डिस्कशंस के नतीजे में हम कुछ लोगों को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाए कि सवाल जो है वो इल्म आधा इल्म है, सवाल बदतमीजी नहीं होती। जी, ये हमारे पास एक हाथ रेज हुआ है जी, बिल्कुल। सर आप मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं करेंटली ना एक ग्रुप में हूँ, तो उसमें ना लाइक मैंने एक क्वेश्चन रेज किया
लेकिन उसमें यूजली लाइक ऐसे यंग बच्चियां अराउंड 16 to 20 years की ऐसे बच्चियां, तो दे वर वेरी रिलक्टेंट टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो ये रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस क्यों आती है क्वेश्चंस को आंसर, या आंसर करने से भी ज्यादा उन पे लाइक सोचना, मतलब इवन सोचने को भी एक बहुत एक बहुत एक्सर्टिंग एक्टिविटी समझा जाता है, मतलब इसके हवाले से। like people they take tension और ये भी कि भाई हम करेंगे तो they will feel guilt हाँ। कि भाई अच्छा फला अच्छा आंसर दे रहा है, इट्स ओके मैं फर्स्ट उसमें। हाँ, तो सर लाइक इस हवाले से क्या किया जा सकता है? अच्छा देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि इनिशियल प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में ना जाने क्यों एक कॉन्सेप्ट है सुपर ह्यूमन बीइंग। हम समझते हैं कि इंसान सुपर ह्यूमन बीइंग होता है, जो कि वो रियलिटी में नहीं होता है। हमारे यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं दी जाती। मिसाल के तौर पर इफ यू हैव अ टीचर इन अ क्लास और वो टीचर पढ़ाने आए और आप उससे कोई सवाल करें, वो कहे मुझे तो नहीं पता, तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल कम इनटू योर माइंड इज तो फिर तुम पढ़ाने के लिए आए क्यों? हम किसी को भी ना गलती, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ये कॉन्सेप्ट है कि हर बंदे को ना हर बंदे को लोहे महफूज जितना आलिम होना चाहिए, जबकि हम ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन कैपेसिटी और लिमिटेशंस के अंदर गुंजाइश नहीं देते। इसकी वजह से हो ये गया है कि हमारे माशरे में आप किसी से भी कुछ पूछेंगे ना, वो नहीं जानता होगा तो कभी भी ये नहीं कहेगा मैं नहीं जानता। बहुत रेयर यू विल फाइंड द पीपल हु से कि सॉरी वी डोंट नो दिस थिंग। हत्ता कि रास्ता चलते हुए आप किसी से रास्ता पूछेंगे ना, अगर उसे नहीं भी पता होगा ना तो वो ये नहीं कहेगा मुझे नहीं पता, वो कोई ना कोई अंदाजा जरूर मार के बताएगा आपको। और ही इज रिलक्टेंट टू टू एक्सेप्ट दैट आई डोंट नो। मतलब इसमें कौन सी हर्ज है? मतलब मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है कि उनसे आप सवाल करें वो कह देते हैं कि भाई आप मुझे नहीं मालूम, मेरे थोड़ा सा इस उसी फील्ड का सवाल नहीं मालूम, वो मेरा नहीं, मेरे जहन पे मेरा काम ज्यादा उस मौजू पे था, इस मौजू पे मैंने नहीं देखा, मैं आपको देख के बता दूंगा। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी वजह है। और कुछ इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस मेरे पास ऐसे हैं कि जिसमें लोग हमारे पाकिस्तानियों के बारे में ये राय रखते हैं कि हम कभी भी ये तस्लीम नहीं करते कि हमें नहीं पता। अब उसका होता यह है कि अगर आपने कहीं किसी ग्रुप में एक सवाल किया है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव टू सिनेरियोज, वन सिनेरियो एल्स के जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि हर इंसान गलती कर सकता है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, तो उसके अंदर एक इंसान बिला झिझक जवाब दे देगा, क्योंकि अगर जवाब गलत होगा तो कोई बात नहीं, इसमें क्या ऐप की बात है, गलती कोई भी कर सकता है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि जिसमें हम वो सुपर ह्यूमन भी, ये सुपरमैन वाला कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो उसके अंदर हो गलत हो गया, हो गलत हो गया, जो कि बचपन से हमारी ट्रेनिंग हुई है। तो साफ सी बात है, आप उनसे सवाल पूछेंगे तो एवरीवन विल बी इन द फियर कि भाई मेरा सवाल गलत, जवाब गलत हो गया तो हो मेरा जवाब गलत हो गया। सो आई थिंक दिस इज द मेजर रीजन। अगर हम अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी को थोड़ा सा चेंज करें तो इस तरह के सवाल ज्यादा निकलना शुरू हो जाए। जी अलबत्ता दिस थिंग वाज नॉट रेलिवेंट टू दी टुडेज डिस्कशन। अलबत्ता कोई टुडे आज की हमारी उससे गुफ्तगू से रेलिवेंट हो तो इंशाल्लाह सवाल पूछिए। सर, जो आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन रेज किया था कि कोई सवाल हो हमारे पास तो क्या हमें उसका आंसर खुद सीख करना चाहिए या किसी आलिम से पूछना चाहिए? खुद मेरे हिसाब से वो एक कोट है कि एक अच्छा दोस्त 10 किताबों के बराबर है। माजरत, एक अच्छी किताब 10 दोस्तों के बराबर है, तो एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर है। तो आपने कहा था कि आप इसके बारे में अपनी राय देंगे। जी बहुत खूबसूरत आपने याद कराया, थैंक यू वेरी मच। देखिए हमने ये देखा कि अब सवाल सिर्फ और सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि वो इंटेलेक्ट से हार्ट में एंटर होती है, और हार्ट से आपके यानी आपके एक्शन से वो सोसाइटी में आती है, और फिर पूरी सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती है। देखिए आप किसी से पूछ भी लेंगे तो वो आपको क्या बताएगा? वो आपको सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में हेल्प कर सकता है ना, कोई आपकी अपने वजूद के ऊपर उसको इंप्लीमेंट तो नहीं कर सकता, वो तो आपने खुद करना है। सो यू आर द एजेंट हु विल बी गोइंग ऑन, आई मीन हु विल बी इंप्लीमेंटिंग दैट कॉन्सेप्ट ऑन योर ओन सेल्फ, प्लस फिर यू विल बी द एजेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज, जो कि सोसाइटी के अंदर उस चेंज को क्रिएट करेगा। लिहाजा अगर हम सवाल को सिर्फ और सिर्फ मेंटल एक्टिविटी तक ही समझते रहे तो फिर वो बात हमें समझ में नहीं आएगी कि हमने पूछ लिया तो बात खत्म हो गई। अब अगर आप अहले जिक्र से पूछ रहे हैं, एक तो अहले जिक्र आपको और ज्यादा इंक्यूजेटिव करेंगे,
ताकि आप उस सवाल का जवाब खुद से तलाश करें। नंबर दो, वहां तक सिर्फ और सिर्फ मेंटल एक्टिविटी तक वो पार्ट खत्म तो नहीं हो गया ना, उसके बाद के जितने भी स्टेप्स हैं वो बिलाखिर आपको खुद करने। यू हैव टू ट्रेड योर पाथ एट योर ओन। नो वन एल्स कैन ट्रेड योर पाथ फॉर यू। सो जब आपने सवाल सिर्फ मेंटल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि वो दिमाग से हार्ट और हार्ट से आपके किरदार और फिर सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट होने वाली चीज है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि अहले जिक्र से पूछना कभी भी हमें पैसिव नहीं बनाएगा, बल्कि वो हमें और ज्यादा एक्टिव बनाएगा, ताकि हम उस सवाल उस थ्योरेटिकल आंसर को लेके अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें, अपने सोसाइटी पे इंप्लीमेंट करें और एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करें। तो ये बेसिकली उसका आंसर था जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी जी सवाल आप करना था। ये अगर जो जैसे अब हम बहुत सारे आलमियों को देखते हैं कि वो सिर्फ लेक्चर्स की हद तक की चीज़ों में रख रहे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डिटेल में ही लेक्चर्स, आपको भी आइडिया है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल तक रखते हैं, लेकिन उसका पैसिव ही रखते हैं, वो उसको एक्टिव उस तरह से नहीं रखते माशरे में। कि बात तो करते हैं कि हम एक्टिव रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो रखते नहीं है, तो उसके लिए क्या उनसे गाइडेंस हो सकती है? असल में बेसिक फियर जो होता है ना, वो पब्लिक का फियर होता है। अगर आप एक ओरेटर के लिए देखें तो उसके लिए बेसिक फियर पब्लिक का फियर होता है, या अगर वो उसको जस्टिफाई करेगा तो वो कहेगा कि अंबिया भी लोगों की सतह पे आके बात करते हैं। देखिए आज भी हमारा, चूंकि मौजू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा सा टफ था, तो हमारे पार्टिसिपेंट्स भी कम थे, और आज आप देखें कि सवाल जवाब में हमारे पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप भी हो गए हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि दे ऑल्सो नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस के लोग हमारी बात को सुनेंगे, और दे आर रेडी टू टेक द थिंग्स इन डीपर मीनिंग्स, क्योंकि ये अक्ल वाहिद एक चीज है जो ठेके पे नहीं दी जा सकती। यानी आप समझते हैं कि यानी ये हमारे एग्जिस्टेंस का एक बहुत मेजर पार्ट है ना, और उसी से चेंज स्टार्ट होता है। तो अगर हम उस चीज को ठेके पे दे देंगे तो चेंज हमारे वजूद में स्टार्ट ही नहीं होगा, तो वी विल नॉट बी एबल टू मेक आवर सेल्फ अ बेटर सेल्फ। तो हम आखिरत में खुदा से किस बात का अजर सवाब चाहेंगे? खुदा ने तो हमें भेजा था टू बिकम अ बेटर सेल्फ। सो इफ वी हैव नॉट ट्रांसफॉर्म्ड आवर सेल्फ इनटू अ बेटर सेल्फ, तो फिर हम क्या पाएंगे? तो ये हमें थोड़ा सा उनको भी कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि पीपल आर विलिंग, people are looking for the deeper sort of sense out of every topic। तो अगर ये होगा तो मेरा ख्याल में फिर वो शायद चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी, वरना फिर एक हद तक ही महदूद रहेंगी। लोग भी कहेंगे यार इससे ज्यादा अजियत ना दो, फिर मतलब वो फिर अनीज करने वाली बात ही खामखा किसी को। जी जी, एनी फर्दर क्वेश्चन? आप पार्टिसिपेंट्स के जाने की वो फिक्र ना करें। मेरा ख्याल है कि उन्होंने मतलूबा कर्ब रिसीव कर लिया आज के लेक्चर से। और नहीं नहीं, मैं हाँ नहीं, एक्चुअली मैं इसमें आई शुड एक्सेप्ट दी आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मुझे इसको ना कुछ एग्जांपल्स के साथ मतलब इट शुड हैव लेडन विद सम रियल लाइफ एग्जांपल्स टू मेक इट बेटर। और मुझे इस पे बार बार रीथिंक करना चाहिए था, इसको बार बार देखना चाहिए था, रीथिंक करना चाहिए था कि हाउ शुड आई गो ऑन प्रेजेंटिंग दिस थिंग। तो मैं वो हमारा एक तो आदत है कि जितने भी दिन हो तैयारी आखिरी दिन ही करनी होती है हमने। तो और आज आई वॉज बिजी फ्रॉम मॉर्निंग, आई हैव हैड अ वेरी लॉन्ग टायरिंग सॉर्ट ऑफ अ डे। तो बस ये मैं फिर वो वर्किंग उस तरह कर नहीं सका, तो आई थिंक आई शुड नॉट ब्लेम एनीवन एल्स। सो द वन शुड बी ब्लेम्ड फॉर दिस थिंग इज मी। सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट जी। नहीं, मेरा ख्याल है स्टिल बाकी पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक भी आ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम कंक्लूड करेंगे इसको। जी आप द बेटी, आप बताइए कुछ है मजीद, या हम फिर आप ही इसको फाइंड मेरे ख्याल से सवालात का सिलसिला बस इतना ही था, तो वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो होपफुली इस हवाले से जो भी आपके जहन में सवाल होंगे, मजीद भी सवाल आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इसको छोड़िएगा नहीं। इफ यू वांट टू डू आई मीन सब्सटेंशियल सॉर्ट ऑफ अ रिसर्च, रिसर्च वो नहीं कि जो किताबों में बंद होकर रह जाए, सफ़ों में बंद होकर रह जाए, बट वो रिसर्च जो एक्टिवली हमारे अमल में आए और उसके बाद इट कैन गो ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। कोई
सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो हमारी दुनिया को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। अगर वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, एवरीथिंग एवरीथिंग, क्योंकि इट इज डीलिंग विद द रियलिटी, सो इट हैज द पोटेंशियल टू हेल्प हेल्प अस ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ। और जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं तो फिर हम दुनिया को ट्रांसफॉर्म करते हैं। होपफुली ये जर्नी जारी रहेगा, और आपकी रिसर्च महज कागजों में छपने वाली रिसर्च नहीं होगी, बल्कि आप सबकी रिसर्च जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली रिसर्च होगी। यानी मुल्ला सदरा की इस कॉन्सेप्ट को पूरी करेगी, जो आपकी सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करेगी इंशाल्लाह, और फिर आने वाली दुनिया को ट्रांसफॉर्म करेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन सर, एंड आई होप, वी ऑल होप कि हमें आगे भी आपसे गाइडेंस लेने में के मौके मिलेंगे जब हम अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। जी, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह ऑलवेज अवेलेबल। मैं एक राय देना चाहूँगा। ये जी जैन जी भाई के सर। इसकी लिंक जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कर दें, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह पर ये शेयर हुआ है। काफ़ी लोग जो है वो इस चीज़ से महरूम रह गए, तो वो शामिल नहीं हो सके। तो इसको थोड़ा प्लीज़ काइंडली देखें कि लोगों तक मजीद इन्फॉर्मेशन ये लिंक मिल जाए। जी बहुत शुक्रिया। मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए इसको कंसिडर करेंगे हम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।